خداوند یسوع المسیح کے اعلیٰ و بالا نام کے وسیلے تیرے پاک روح کی تسلی بخش حضوری میں اور تیرے زورآور فرشتوں کی موجودگی میں ہم تجھے جلال دیتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور شکر گزاری ہے کہ یہ تمام ہو گیا۔ تیرے لوگوں نے انتظام کیا ہے، تیرے لوگ جمع ہیں۔ خدا تیرا شکر ہو تیرے خادموں کے لیے جن کو تو نے بلایا، چنا، مقرر کیا، مسا کیا اور بھیج دیا اس دنیا کے اندر، تاکہ تیری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو اور دنیا کے لیے نور ثابت ہو۔ اپنے پیارے بھائی لیاقت کے لیے تیرا شکر، ہینی کے لیے تیرا شکر جو سلامتی سے ہمارے درمیان آئے ہیں۔ تیرے بچے ہیں، تیرے خادم ہیں، ان کی لاج رکھ، لحاظ کر، ان کی مدد کا۔ اب جب تیرا خادم یہاں آتا ہے، بولتا ہے، بخشتے ہیں کہ روح القدس چارج سنبھال لے۔ پاک روح، تو اس زمانے کا خداوند ہے، تو کلیسیا کا خداوند ہے، یہ تیرا زمانہ ہے اور تو بہتر جانتا ہے کہ کس طرح باپ اور بیٹے کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ Dear Holy Spirit of God, glorify the name of the Father and the Son in a new way tonight. Move in our midst, touch somebody and do something amazing to the glory of the Father and the Son. Help us to receive the word of God with faith in our spirits. And use your minister mightily and greatly under the mighty anointing of your Holy Spirit. With the glory of the Father, Son and the Holy Spirit. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ شکریہ بھائی جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی اقبال مسیح، انہوں نے بھی پادری صاحب کے ساتھ بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں۔ کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاللویہ! کیا آپ سب تیار ہیں؟ آمین۔ تو آئیے ہم اپنی تعلیم کی گونج میں ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند مسیح کے زندگی بخش نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مسز ہینی کیسر میری اہلیہ ہیں، یہاں موجود ہیں۔ آپ نے ہمیں بڑی محبت سے استقبال یہاں کیا، تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں واپس لاہور میں ہوں، جس جوش سے آپ نے گیت گائے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر اٹلی سے پنجابی وہ بڑی سکھ ٹائپس کی تھی۔ سو نائس آف یو۔ ان کے جوش سے، ان کے اندر جو مسیح کے لیے محبت ہے، آئی واز ریئلی بلیسڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور خاص طور پر آپ کے پاسبان بھائی بوئس، انہوں نے مجھے پاکستان میں کال کیا، بڑی کنونسنگ پاور ہے ان کی، تو انہوں نے مجھے دعوت دی آپ کے چرچ کے بہاف پر۔ تو آپ کے چرچ کی لیڈرشپ کا، پاسٹر بوئس کا، آپ جتنے یہاں پر رسپانسبل ایگزیکٹو لوگ ہیں ایشین چرچ فار کرائسٹ سویڈن، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حوالہ اس کنونشن میں جو آپ نے منتخب کیا ہے، ایکچولی اٹ از مور سیریس دین بیوٹیفل۔ اٹس ویری سیریس میسج۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھیں اور اس پر غور بھی کریں۔
جب ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہو کلام مقدس تو کھولیے پہلا کرنتھیوں 10واں باب پہلی 13 آیات ہم پڑھیں گے. اٹس دی ورڈ آف گاڈ. تو لیٹس لک انٹو اٹ کہ یہ کیا کہتا ہے. اکثر ہم خود ہی بولتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی کلام یہ کہتا ہے. کلام نیچے سے کہتے رہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود ہی کہہ رہا. تو لیٹ دی ورڈ اسپیک. اس میں بلیسنگ ہے. تو لیٹس لک انٹو اٹ. اور جو پہلی آیات ہیں ان میں لفظ سب پر غور کیجیے. پہلی آیت سے اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا. Now, the experience was the same. And their food was the same. The same situation. But the results are different. Let's see. 5ویں آیت میں مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا. سب نے روحانی خوراک کھائی روحانی پانی پیا سب نے معجزہ دیکھا. بحر کلزم کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے everybody experienced it. مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اس لیے آپ کی یہ آیت ہے کہ if you think you are standing اب ڈھیر نہیں ہوئے. most of them کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی. That's why they were dead. انہوں نے بری چیزوں کی خواہش کی وہ ڈھیر ہو گئے. ہمارے لیے وہ عبرت کا باعث ہے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناچنے کودنے کو اٹھے اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے. 23,000 people. God is so serious about it. اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اور تم بڑبڑاؤ نہیں
जिस तरह उन में से बाज बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। नसीहत के लिए जो लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड नुतासिया, इसका मतलब है कि टू पुट और सेट इनटू द थिंकिंग अ चेंज ऑफ वंस बिहेवियर। किसी की सोच में ऐसी बात डालना कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। नसीहत का मतलब ये है। एक और मतलब है इसका टू गिव अ शॉक ट्रीटमेंट। ये मेडिकल लोग ज्यादा जानते हैं। व्हेन दे शॉक द पेशेंट टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, ये नसीहत का मतलब है। सो पॉल इज गिविंग अस अ शॉक ट्रीटमेंट, पुटिंग अ चेंज इन आवर थिंकिंग, कि हमारा बिहेवियर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ये दुरुस्त हो जाए। इसलिए ये कलाम पौलुस रसूल ने इन द फर्स्ट सेंचुरी न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स के लिए ये लिख दिया। उन पर ये वाक़ई हुई ये बातें, लेकिन इबरत के लिए कि हम सबक सीखें, हमारे लिए वो मॉडल बने, हम देखें और गौर करें। दिस इज नाउ योर वर्स। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे। इसके लिए इंग्लिश लफ्ज ये भी है, टेक हीड। बहुत जायजा लें अपनी जिंदगी का। अगर कोई समझता है कि वो कायम है, ही इज स्टैंडिंग, ही इज फर्म, वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में न पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। दिस इज गॉड्स वर्ड। बॉटम लाइन इज, खुदा ये चाहता था कि उसके लोग जिनको उसने मिस्र की गुलामी से निकाला विद अ पावरफुल हैंड, वो मुल्क किनान में जाए। सिंबल है हमारे लिए ऐसी जगह जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों को देने के लिए किया कि वो वहां रहे जहां दूध और शहद बहता है, जहां खुश है, जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जहां there will be no more slaves, no more bricks, no more whipping, no more pharaoh। वो किनान में, खुशहाली में, खुदा के वादों की बरकतों में आए, अहद की बरकतों में आए, कसरत की जिंदगी में आए। एंजॉय कर खुदा की हुजूरी को, उसके वादों को, प्रॉस्पेरिटी को, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, एवरीवेयर। एंड इट इज स्टिल गॉड्स विल। खुदा ये चाहता है, ये खुदा की ख्वाहिश है कि न्यू टेस्टमेंट के लोग वो अपने किनारे में, मसीह में आकर, खुदा की बादशाही में आकर एंजॉय करें, बिला खौफ जिंदगी गुजारे, रूहुल कुद्स से भरकर, पाकीज़गी में, खूबसूरती एंजॉय करें, रूहुल कुद्स के गिफ्ट्स, रूह की दिलेरी, मसीह का नाम, पाक रूह की आग, जिंदगी
इंजॉय करें, मसीह में आए, कायम रहें, किनान में आ जाए। दिस इज व्हाट ही वांट ऑल द टाइम। इसलिए कि वो इंसान से इतनी मोहब्बत रखता है। We don't know how much God loves us. इतनी मोहब्बत रखता है कि हमारी निजात के लिए उसने आसमान खाली कर दिया, यीशु मसीह को भेज दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा जिंदगी। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसम से पाए। यीशु मसीह जिंदगी देता है, इंसान से मोहब्बत करता है, बेपनाह, जिसका हम सोच भी नहीं सकते। वो चाहता था कि मेरे लोग के नाम में रहें, लेकिन they could not make it. They didn't go. ऐसा क्यों है? 5 चीजें हमारी टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। 5 sins, 5 attitudes, जिन्होंने खुदा के लोगों को, जिन्होंने पावरफुल मिरेकल्स का तजर्बा किया, समुद्रों को पार कर, बादल वहां पर मौजूद, चट्टानें पानी बहा रही थी, दरियाओं की तरह, नदियों की तरह, सुपर नेचुरल। आदमी देख कर दहल जाता है, चट्टान पानी बहाए दरिया की तरह, बादल, नूरानी बादल हमेशा वहां पर रहे, खुदा की हुजूरी। इसके बावजूद 6 लाख कम से कम लोग, इट्स अ ह्यूज नंबर, ओनली 2 made it. Think about it. क्या हुआ? 5 बातें इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं कि वो क्यों मुल्क किनान में जा ना सके। और वो बातें हैं, नंबर 1, बुरी ख्वाहिश, लस्ट। नंबर 2, बुत परस्ती, आइडोलेटरी। नंबर 3, हरामकारी, फॉर्निकेशन। नंबर 4, खुदावंद की आजमाइश करना। नंबर 5, बड़बड़ाना, मरमरिंग, complaining all the time. These are the things written in our text. इनकी वजह से ये लोग मुल्क किनान में, जहां दूध और शहद बहता है, ये जा नहीं सके हैं। और रसूल कहता है कि ये बातें उनके लिए ये इबरत है, हमारे लिए ये निशान है, सबक है। हम सीखें, हम देखें, अपने आप को दुरुस्त करें कि वो लोग इन गुनाहों की वजह से उस जगह ना जा सके जो खुदावंद ने उनके लिए त्याग की थी। What about us? मेरे अजीजों, हर एक शख्स में लॉन्गिंग है, तड़प है, किनान के, तरक्की के, खुशहाली के, बरकत के, जिंदगी के लिए आदमी तलाश करता है। हार्ट लॉन्गिंग इन एवरी पर्सन कि आई वांट टू बी इन कैनान। शायद वो ये कहता नहीं है, इसको एक्सप्रेस वो डिफरेंट लैंग्वेज में करता है, लेकिन ये तड़प हर एक शख्स के अंदर मौजूद है और इन लोगों के अंदर भी मौजूद थी। लेकिन ये 5 बातें हैं जो आज हमको चैलेंज करती हैं और आइए इन पर गौर करें। नंबर 1 है लस्ट, और ये शुरू में रसूल ने कहा ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें। इन इंग्लिश द वर्ड इज लस्ट, और इसका हवाला गिनती की किताब में है। इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। बुरी बात नहीं है। लस्ट मीन्स
स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन ऐसी चीज की ख्वाहिश जिसको खुदावंद अप्रूव नहीं करता, उससे मगलूब हो जाना, उस ख्वाहिश में फंस जाना, उस ख्वाहिश की ताकत के नीचे आ जाना और सिर्फ अपने जिस्म की तस्कीन के लिए तमाम चीजों को इस्तेमाल करना। फोकल पॉइंट, सेंट्रल चीज इंसान का जिस्म, उसकी जात, उसके इमोशंस, उनको सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी तरह से। बंदे को इस्तेमाल करना पड़ता करो, अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करना पड़ता करो, एनीथिंग, एनीबॉडी, यूज देम टू सेटिस्फाई योर own ego, self, emotions, yourself. That is a lust. ये लोग क्या कर रहे थे? मिस्र से निकले हैं, बियाबान है, और जिस बात की तरफ रसूल इशारा करता है गिनती की किताब में, वहां पर यह वाला मैंने नोट किया है, आई वाज रीडिंग अबाउट इट, तो ऐसे लगता है कि आज ही के इंसान के लिए यह लिखा हुआ है। लिखा है वहां पर गिनती 11 बाब 4 से 6 आयत में, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे, लुक एट इट, रोने लगे। कैन यू इमेजिन कि 6 लाख पीपल, उन्होंने इतने पावरफुल काम देखे हैं खुदावंद के, और कलाम कहता है वो रोने लगे। क्या रोते हैं? ओ हमको कौन गोश्त खाने को देगा? इमेजिन, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, पट्टे नहीं याद आए हैं, फिरौन के कोड़े याद नहीं आए, ये नहीं याद आया कि हम तो वहां पर गुलाम थे, हमें तो वो साथ ही लेने देते थे। That was not our country. What are they remembering? गोश्त, मछली हम मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे। काश को वीडियो तैयार हुई होती और ये कैसे बोलते थे, रो रहे, सो सीरियस। हाय वो खीरे, वो खरबूजे, वो गंदले, वो प्याज, वो लहसुन। दिस इज देयर डिजायर। लेकिन अब हमारी जान खुश्क हो गई, यहां कोई चीज मुयस्सर नहीं, एंड दैट इज नॉट ट्रू। और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। ते बदली वे लेंगे खुदा दिखाई तो बहुत कुछ दे रहा, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की बरकतें, मूसा जैसा लीडर, पावरफुल पर्सन, वहां पर बहुत कुछ था इनके। अगर ये सोचना चाहते तो कलाम में लिखा है एक जगह पर, इनकी जूतियां नहीं टूटी 40 साल। पता नहीं केड़ी कंपनी दिया सन। ये भी लिखा हुआ है उनके कपड़े नहीं फटे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। इमेजिन कि वो लोग निकले, पूरी नस्ल बियाबान में पैदा हुई है, एंड नो मेडिकल क्लिनिक, और बच्चे पैदा हो रहे, नस्लें बढ़ रही हैं, कोई बीमार नहीं है, किसी को बुखार नहीं है। उन्हें तो रोज खुदावंद की हम्द और सताइश में गीत गाने चाहिए, नारे मारने चाहिए थे, यहोवा हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है, व्हाट अ लकी पीपल वी आर। हम हिस्ट्री बना रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई थी, और लोग जिन कौमों में वो जा रहे थे वो डर रही थी, कांप रही थी कि एक कौम आ रही है। और ये क्या कह रहे थे? हाय वो खीरे, हाय वो
سے ہائے وہ گوشت. This is the lust. Such a great plan of God and such a small conversation these people are giving. Lust کی وجہ سے ایک جگہ پر لکھا ہے من کو کہتے ہیں نکمی خوراک. Actually they rejected God. اگر آپ زبور 78 پڑھیں اس میں پوری ہسٹری بیان کی. ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کرائیت کرتا ہے. Actually they are defying God Almighty, Jehovah ever. کوئی sacredness نہیں, کوئی fear نہیں. لسٹ نے ان کو اتنا مغلوب کر رکھا تھا کہ they were crying for their body, for their physical thing, and they couldn't enter into the promised land. How about us today? شاید ہم آج کھیرے شیروں کو تو یاد نہیں کرتے, but maybe there are other things that satisfy our body, our physical emotions. اور ہماری زندگی صرف انہی کے ارد گرد ایوالو کرتی رہتی ہے. We will not make it. پولس رسول کہتا ہے کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. What a sad situation. قدم ان کے کنعان کی طرف تھے, دل ان کا مصر کی طرف تھا. زبان پر یہوہ تھا اور دل میں گوشت. باطن کچھ اور تھا, ظاہر کچھ اور تھا. And sometimes, let me be very straightforward, ہم کرسچنز ہم کچھ اس قسم کے لوگ ہیں. In the church, میرا خیال ہے فرشتے بھی ساڑھے لوگ ہیں. We are so good, so holy, so pure. چرچ میں اس طرح چلتے ہیں جیسے کبھی ہم نے کسی بری چیز کو we even don't know about it. But you leave the church and go out, and particularly when we are alone and nobody is watching, ہماری ریئل پکچر اس وقت سامنے آتی ہے کہ ہوا کوئی خدا is there اور وہ دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ یہ لوگ آسمان پر نہیں جا سکے. دوسری بات جو یہاں پر ہے, بت پرستی. بت کی پرستش کرنا, سیدھی بات. بت کی خدمت کرنا مذہبی طور پر. پرستش کی غرض سے خدا کے علاوہ کسی بنائی ہوئی چیز کو سجدہ کرنا بت پرستی ہے. کوئی چیز ہو, انسان ہے بیسیکلی ورشپر. نیچرلی we are worshippers, worshipping human beings. ورشپ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ہم ضرور ورشپ کریں, اگر خدا کی نہیں کسی اور کی کریں. ورشپ کے بغیر, پرستش کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. کسی انسان کی کریں گے, چیز کی کریں گے, آئیڈیا کی کریں گے, مشن کی کریں گے, کوئی بندہ نہیں لاتا اپنی طرح کریں گے ضرور. اس لیے کہ خدا نے ہمیں پرستش کے لیے بنایا ہے, ورشپ کے لیے بنایا ہے. ورشپ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اس لیے بیسیکلی وین ایور جب ہم ورشپ نہیں کرتے اسپرٹ اینڈ ان ٹروتھ, روح اور سچائی میں جب ہم ورشپ نہیں کرتے, ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جگہ پر ہم کسی بت کی پرستش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پرستش کے بغیر رہ نہیں سکتے. Challenge is
whom are we worshipping. खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना 5वां बाब 21 आयत में आखिरी आयत है, वहाँ बड़ी वार्निंग है बुजुर्ग रसूल की तरफ से। वो कहते हैं, ऐ मेरे बच्चों, टू द न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स, अपने आप को बुतों से बचाएं, ईमानदारों, डोंट पोल्यूट योरसेल्फ, अपने जहन को, अपने दिल को बुतों की प्रस्तुत से आलूदा ना करें, पोल्यूट ना करें, डर्टी ना करें। बुत के अंदर जबरदस्त पावर होती है इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, इससे बचो। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि लालची जो बुत प्रस्त के बराबर है, वर्शिपिंग मनी, महंगा इन स्वीडिश है, लेकिन गाली कोई नहीं। पैसे के लिए सब कुछ करना, पैसे के लिए सब कुछ छोड़ देना जो अच्छा है। लेट्स बी सिंसियर कि जब चॉइस आती है खुदा की बख्शिश और पैसे की बख्शिश, व्हाट डू वी चूज? और पौलुस रसूल हमें ये बात बताता है, और हवाला गिनती की किताब 32 बाब में है। मैंने वो दोबारा पढ़ा कि ये बुत प्रस्ती का हवाला है क्या। देखिए जरा गिनती 32 बाब। और मूसा, पास्टर मोसेस, वो 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया। 40 days is a long time for a pastor to be out. And a big church, 6 lakh members. And pastor is not there, senior pastor is not there, associate pastor Aaron is there. And they are looking, और वो पूछते हैं, जी मूसा किधर चले गए जनाब? तो उनको कहने लगे कि जनाब आप ऐसा करें हमारे लिए। नो, इट्स नॉट वर्स चैप्टर 32, इट्स एक्सोडस आई थिंक, खरूज की किताब 32 बाब। तो उनको क्या कहते हैं? लिसन, हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए। हारून भी कमजोर लीडर था, प्रेशर के नीचे कंप्रोमाइज कर रहा है। मेरा ख्याल है कई पादरी बिलखसूस यहाँ यूरोप, अमेरिका, कनाडा में ये प्रेशर के नीचे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग को देने वो जेडे पाकिस्तानी लोग ना कहना साढ़े तो बगैर पादरी चर्च कितों करना। ही गिव्स इट। वो कलाम की सच्चाइयों पर प्रेशर के नीचे डेफिनेटली कंप्रोमाइज कर जाते हैं। मैंने देखा है कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज करते हैं, ले आओ जी ले आओ, सोना सोना ले, सब खुश हो गए, दिस इज व्हाट दे वांटेड। और फिर लिखा हुआ है कि उसने उसको ढाला, एक बछड़ा निकल आया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है, लिसन, जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई। उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। बुत भी है, कुर्बानगाह भी है, ईदें भी हैं, कुर्बानियां भी हैं, सलामती की कुर्बानियां भी हैं। और फिर लिखा है, फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया, पार्टी इज गोइंग ऑन, और उठकर खेल कूद में लग गए। एक्चुअली इट मीन्स अ सेक्सुअल पार्टी। ऑल थिंग्स टुगेदर, खुदावंद भी है, देवता भी है, खाना पीना भी है, कुर्बानियां भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, वर्शिप भी है, एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ एंड मोसेस। And today it is the same. We like that.
पार्टी भी होनी चाहिए, गीत भी होनी चाहिए, पादरी साहब आए चलो इन्हों को कलाम भी सुन लो। दिस इज आवर वोकैबुलरी। ये भी कर वो भी कर, बट व्हाट अबाउट, क्या वो हमसे खुश है? और याद कीजिए कि ये लोग दे डिडंट मेक इट टू कैनन, और ये आज के ईमानदारों की बड़ी एक साफ पिक्चर है चर्च की। द थर्ड थिंग जो हम पढ़ रहे हैं, हरामकारी, फॉर्निकेशन, और ये लफ्ज पोर्नियो, पोर्न, आग, पोर्नोग्राफी, all kinds of sexual sins, all kinds, fantasies, any sin that is related to sex. This is what these people were doing, God's people. मेरा ख्याल है आज की दुनिया से ये टॉपिक ही बड़ा भार है। Nobody minds. Oh, God's word minds. खुदा का कलाम आज भी हमारी जिंदगी के लिए म्यार है और हमको बताता है इसमें मुकाशफा है, कोई समझौता नहीं है। और मैं बड़ी मोहब्बत से ये कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई शख्स फॉर्निकेशन, हरामकारी, किसी सेक्सुअल सिन में इन्वॉल्व है, रिपेंट, पास आइए, तौबा कीजिए। आपके नाम में नहीं जा सकेंगे, फतेहमंद जिंदगी में नहीं आ सकेंगे, खुदा की बादशाही में तरक्की नहीं कर सकेंगे। हर कौम का अपना एक होता है वो बैंड, यानी पाकिस्तान से झूठ से, दैट्स अ बैंड इन पाकिस्तान। फोन आएगा तो बंदा लाहौर है तो कहेगा यार मैं इस वे मुल्तान च हाँ तो नाल ही दूसरे बंदे को अख मार दूंगा। He is lying and nobody feels it. It is so much in the country. कोई realize नहीं करता कि I am lying. Lying, cheating, deceiving, दो नंबर, everything. It's based on lying. In the West, sexual sins nobody minds. जे तुम माइंड करो किसी को गल करो, स्वीडिश गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ होगी। जी तो करके देखो। This is how the West is. Watch out, save yourself, keep yourself pure for the Lord. खुदावंद ना तो वो पाकिस्तानी है, ना वो स्वीडिश है, ना वो अमेरिकन है। He is God Almighty and He is pure and He is holy and His character is so wonderful and beautiful. And this is how He wants His people. जहां कहीं भी हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान में, स्वीडन में, अमेरिका में, कनाडा में, He wants His people to be pure and to be holy. This is what the word of God tells us. और कुरिन्थियों की कलीसिया को रसूल ने लिखा है, हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए। बस अपने बदन से खुदा का जलाल से Don't use it for fornication. It's a dirt. It's a filth. It will destroy. प्रॉमिस गुनाह जरूर करता है, तेरी ईदा हो जाती है, not at all. पहला झूठ इब्लीस बोलता है, it is a wonderful thing. बंदा कर लेता है, फिर उसको दूसरा झूठ ये बोलता है,
oh, God hates you for that. Don't go close to God. God will not accept you now. दोनों झूठ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हवाला जो आपने मुंतखब किया हुआ है, इसमें हरामकारी के बारे में one of the 5 things जिसकी वजह से ये लोग बियाबान में थे, they were not standing firm, they died in the wilderness and the sin will kill you. चौथी बात जो यहाँ इस टेक्स्ट में है, खुदावंद की आजमाइश। हम खुदावंद की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। Tempting God, इसका मतलब ये है, let me tell you very simply what it means. इसका मतलब है खुदा की वफादारी पर शक करना, खुदा के वादों को क्लेम न करना, उनका यकीन न करना, उन पर शक करना। जैसे ये लोग कह रहे थे, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता? कैन गॉड डू इट? वो गोश्त मांग रहे थे, सोचने लगे कि क्या खुदावंद इन सारे लाखों लोगों को शेयर कर सकता है? इट कैन नॉट हैपन। खुदा के वादों पर शक करना, वफादारी पर शक करना, खुदा की फितरत के खिलाफ बेखौफ काम करना, उसकी अदालत की भी परवाह न करना, उसके एक्शंस के खुदा क्या एक्शन लेगा उसको भी चैलेंज करना, खुदा को आजमाना कि वो मेरा क्या कर लेगा, इंडिपेंडेंट हो जाना, किसी को खातर में ना रहना। जैसे मसीह को आजमाया गया, इब्लीस ने खुदावंद को आजमाया और क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, भूख लगी हुई है, फरमा कि ये पत्थर जो है वो रोटियां बन जाए। खुदावंद ने कहा, ये भी लिखा हुआ है कि तू खुदावंद, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि उसके कलाम से जीता है। फिर उसने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि कलाम कहता है कि फरिश्ते आएंगे और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु ने क्या कहा? ये भी लिखा है बैलेंस की तरह कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। कई लोग हैं खुदावंद के मंसूबों से बाहर हो जाते हैं और खुदावंद को आजमाते रहते हैं, और इन लोगों ने भी खुदावंद को आजमाया और वो कनान की तरफ ना जा सके। 5th एंड द लास्ट पॉइंट जो इस लिस्ट में दर्ज है, बड़बड़ाना, ग्रम्बलिंग, जुबान का इस्तेमाल है, शुक्रगुजारी के बरअक्स है, शुक्रगुजारी ना करना, मनफी बातें करना। ये जो लफ्ज है बड़बड़ाना, ग्रीक वर्ड है गुगुसो, इसका लिटरली मतलब है टू मीट सीक्रेटली। कन्या मिलके ना हौली हौली मंजी मीटिंग, ए लोयर टू मीट सीक्रेटली, टू से एनीथिंग इन अ लोयर टोन, चुप करके कान बड़बड़ा। फिर इसका मतलब है खुदावंद की सॉवरेनिटी में आसूदा ना होना, खुदावंद के इख्तियार में रहने के लिए आदमी का कनायत ना करना। ऐसा आदमी जो काने नहीं, कंटेंट नहीं है, बेसब्रा है, बेचैन है, शिकायतें करता रहता है, मनफी बातें करता रहता है, उफाएं उड़ाता रहता है। बड़बड़ाने का ये मतलब है अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करता रहता है। और ये लोग इन खुदावंद ने जब यरू की दीवार गिरानी थी ना, कहना क्या तुम्हारा 7 दिन बोलना है, उन पता जे बोले तो काम खराब हो गया। 7 days don't talk, just walk,
یہ ہمیشہ بڑبڑاتے رہتے تھے. اینڈ دس واز اے بگ سن. شکر گزاری نہ کرنا, کنٹینٹ میں نہ رہنا, اور یہ آدمی کی بہت بڑی پرابلم ہے. کتنا پہلے کہا یار دھوپ نہیں نکلتی, تو بہت ہی نکل گئی, بہت لگن لگ گئی, بہت چبھن لگ گئی. یعنی he is never happy. He desires something, that desire is fulfilled, then he has something else to murmur, to complain, to be discontent. یہ دراصل خداوند کی شکایت کرنا ہے. اور یہ لوگ موسیٰ بیچارے بھی تو ان کی دوارے ہوئے کہ یہ ہمیں مصر سے نکال کر لایا ہے. اور یہ گنتی 14 بار میں ہے ہوا تھا, کاش ہم مصر میں مر جاتے, کاش ہم مصر میں مر جاتے یا اس بیابان میں ہی مرتے. اے دعائیں میں تو پوری ہو سکتی. ہم بیابان میں مرتے. خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ Can you imagine کہ they are even questioning the Lord's intention. یہ ہمیں خداوند اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرنا, کیا بڑا منصوبہ ہے جو خدا نے ساڑھا. They are not thankful. اور یہ بڑبڑا رہے ہیں. پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. یہ بڑبڑانا ہے. تو میرے بہنوں, میرے بھائیوں, 5 باتیں جن پر آج ہم نے غور کیا معمولی طور پر, اور ہماری آیت ہے ٹیک ہیڈ, لک کیئرفلی. اور وہ باتیں ہیں لسٹ, بت پرستی, حرام کاری, خداوند کی آزمائش اور بڑبڑانا. یہ باتیں وہ کر رہے تھے بیابان میں, اور وہ کنارے نہ جا سکے, بیابان میں ڈھیر ہو گئے. If you think you are standing firm, you are all right, these things will not disturb you. You are very proud. You think you will never slip. پولس کہتا ہے be careful, تاکہ تو بھی گر نہ پڑے. یہ چیزیں انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں, اٹیک کرتی رہتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں اس کو آپ کرتی ہیں, اور آدمی بیابان میں ڈھیر ہو جاتا ہے.